Bismillahirrahmanirrahim. So our today's lecture is on the spinocerebellar tract. Basically, different sensory information. They traveled in different tracts from peripheral nervous system into central nervous system. From peripheral nerves, that information is gathered, then that information enter the spinal cord. Then in spinal cord there are different ways in that which travel upward into the nervous system. In that we have discussed different track. Today track is also very important, which also carry important information upwards towards brain from lower part of the area. As its name indicates, spinocerebellar tract, so definitely it will carry information from the spino means spinal cord. Then that information will be travel and go to cerebellar means to cerebellum. Clear? So that is also an important tract which carry information from spinal cord to cerebellum, known as spinocerebellar tract. We'll define this tract as a nerve tract originating in the spinal cord and terminating in the cerebellum, so called as spinocerebellar tract. If we see the cut section of spinal cord and see the location of that tract, where this will be present in the spinal cord. So if we see, it is shown yellow. Okay, this yellow area which is near to that red means anterior red area, which is anterior lateral spinothalamic tract. It is near to that in two portions, one posterior, one anterior. Both are spinocerebellar tract. So they are present in the spinal cord. Their fasciculi are present in the spinal cord when we see its cut section. Clear? So ये वो ट्रैक है जो कि स्पाइनल कार्ड से इंफॉर्मेशन ऊपर सेरिबेलम के पास लेके जाता है. सेरिबेलम मेडुला के पीछे एक पार्ट होता है ब्रेन का. अब इम्पोर्टेंटली कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, उसके लिए थोड़ा ये डायग्राम हम देख लें नेक्स्ट स्लाइड की. Basically this carries called as के unconscious proprioceptive information from muscle and joints. मसल और जॉइंट के पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है. बेसिकली मोटर सिस्टम जब काम करता है, हमारे मसल एक्ट करते हैं, वी गो, रन, वॉक, at all these things. Basically when muscle work, tension develop in the muscle. When bones are moved through the tendon by the contraction of muscle, these tendon work, tension generate in these tendons. So there are sensory receptor in the muscle and the joint, especially in the tendon, from which information go into the brain. That information is basically unconscious information, subconscious information. We does not know that. I does not know कि my Achilles tendon have how much tension, but my brain know कि how much tension is on my Achilles tendon, how much tension is on my bicep tendon when I move my limbs, arms. Clear? So ये unconscious information muscle से, joint से ये continuously हमारे brain के पास जाती रहती है. ये जिन ट्रैक से जाती है, स्पेशली इसी ट्रैक से जाती है, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक. क्लियर? Although we cannot physically acknowledge these signals, हमें नहीं पता चलता इनका. They help our brain to coordinate and refine motor movement. इन unconscious information का फायदा क्या होता है ब्रेन के पास? ब्रेन को पता होता है अब इस टेंडन के पास इतनी टेंशन है, अगली मूवमेंट मैंने किस जाविये से करनी है, किस पावर से करनी है, ताकि जो काम करना चाहते हैं वो हो जाए. क्लियर? अब दिस ट्रैक इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दो इसके हिस्से होते हैं, ठीक, एंटीरियर और पोस्टीरियर, दो पोर्शंस होते हैं. उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट स्लाइड. पहले ये देख लें जो हमने बताया अब तक. इस डायग्राम को थोड़ा आप देख लें. क्या लिखा हुआ है? ये मसल एक दिखाया गया है बाइसेप का, ठीक है. उसका ये क्या है? टेंडन दिखाया गया है. मसल के बीच में ये देखें, इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से ये सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है, यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन. ये होता है मसल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं मसल स्पिंडल. ये रिसेप्टर होता है, ये सेंस करता है मसल की मूवमेंट को. क्लियर?
और दूसरा टेंडन के अंदर एक रिसेप्टर होता है, उसका नाम होता है गोल्जी टेंडन रिसेप्टर, लेकिन नाम इसका पड़ गया गोल्जी टेंडन ऑर्गन। ऑल्दो दिस इज नॉट एन ऑर्गन, इवन दिस इज ए पार्ट ऑफ ए सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर? सो इसका नाम है गोल्जी टेंडन ऑर्गन। इन दोनों से इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कार्ड के साथ पास, फिर स्पाइनल कार्ड से ऊपर जाती है सेरिबेलम के पास, दैट इज नोन एज स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। क्लियर? अब इसको देख लें, ये स्पाइनोसेरिबेलर एक ट्रैक्ट दिखाया गया है। अब अगर हम देखें थोड़ा सा, आप इस पिक्चर को कंसंट्रेट करें थोड़ी देर के लिए, क्या बता रही है पिक्चर? सी द ब्लू पार्ट ऑफ दैट पिक्चर। ऑल दी सेंसरी इंफॉर्मेशन अब तक जो हमने पढ़ा है, जो भी ट्रैक पढ़े हैं, इवन टुडेज ट्रैक, वो इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी रिसेप्टर से। अब ये जो अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन जा रही है फ्रॉम बोन, joint, spatially from the tendon and muscle spindle, from Golgi tendon organ, from muscle spindle, ये दो रिसेप्टर होते हैं। ये इंफॉर्मेशन क्या है? मूवमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ब्रेन के पास जाती है, हमें नहीं पता चलता इसका। दिस इज अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन। इसके लिए फिजियोलॉजिस्ट ने इसको एक नाम दे दिया है कि दिस इज प्रोप्रियोसेप्टिव टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या इस इंफॉर्मेशन को कहते हैं? प्रोप्रियोसेप्शन। क्लियर? और उसके रिसेप्टर को कहेंगे प्रोप्रियोसेप्टर्स। यही लफ्ज यहाँ लिखा हुआ, मसल स्पिंडल स्पेशली प्रोप्रियोसेप्टर्स, वहां से इंफॉर्मेशन जाती है। किस? ये हो गए रिसेप्टर, तो ये अटैच होंगे सेंसरी न्यूरॉन के साथ। उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, देख रहे हैं ब्लू वाला है, उसकी सेल बॉडी। एक प्रोसेस बाहर गया, एक अंदर जो गया उसने फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनअप्स किया। सेकंड ऑर्डर फिर ये देखें उसी साइड पे ऊपर जा रहा है, साइड को क्रॉस नहीं कर रहा। सेकंड ऑर्डर इन द स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट लिखा हुआ, फाइबर डू नॉट क्रॉस। ठीक? क्लियर? आर क्रॉस एंड रिक्रॉस ये भी होता है, कभी कभी क्रॉस करके रिक्रॉस करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसी साइड के सेरिबेलम पे इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। फॉर इस इंफॉर्मेशन का मकसद क्या है कि सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स द मसल मूवमेंट। ये सेरिबेलम के फंक्शन में आपको बताएंगे कैसे कोऑर्डिनेट करता है। नाउ दिस पिक्चर शो के इंफॉर्मेशन सेंड ऑन द सेम साइड, द ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्टर, ascend the information to same side cerebellum। ये जो ट्रैक्ट है सेरिबेलम का, ये होता है बेसिकली डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। इस पे आते हैं। डॉर्सल जो पोर्शन है वो हम स्टार्ट अगर करेंगे सिंपली, रिसेप्टर इसकी कौन से हैं? मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, जॉइंट के रिसेप्टर जिनको प्रोप्रियोसेप्टर कहते हैं, दे विल कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट मसल कंट्रैक्शन, डिग्री ऑफ टेंशन इन द मसल, then their function is basically to aware the body, especially cerebellum, about contraction of the muscle, degree of tension in the muscle and tendon, position and rate or movement of the part of body, force acting on the surface of body। ये तमाम इंफॉर्मेशन सेरिबेलम को चाहिए। इसलिए चाहिए कि सेरिबेलम ने हमारे मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेशन तभी होगी जब आपको पता होगा। एक ऑफिस के अंदर बॉस कोऑर्डिनेट तब करवा सकता है जब उसको अपने हर एम्प्लॉय का, उसकी टाइमिंग का, उसके काम का, उसकी बिहेवियर का पता हो। जब पता होगा तो उनको कोऑर्डिनेट कर सकेगा, उनसे काम ले सकेगा। जब उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी कि मेरा जो पहली सीट पे बैठा है एम्प्लॉय जो क्लर्क है उसके पास क्या काम है, दूसरे के पास क्या काम है, वहां से फाइल किसके पास जाएगी, इंफॉर्मेशन जब बॉस को पता होगी तभी वो उनसे काम ले सकता है, उनको कोऑर्डिनेट करके चला सकता है। यही मूवमेंट के बारे में, पहले मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन करवाता है सेरिबेलम। वो तब करवाएगा जब सेरिबेलम के पास प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन होगी। क्लियर? अब पाथवे इसका देखेंगे डॉर्सल ट्रैक का, वो क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आर इन पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया, हम देख चुके हैं यहाँ पे। दी फाइबर ऑफ दिस ट्रैक्ट आर अनक्रॉस्ड, क्रॉस तब कहेंगे जब दूसरी तरफ जाएंगे। सेम साइड पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन असेंड ऑन द सेम साइड इन द लेटरल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, असेंड थ्रू अदर स्पाइनल सेगमेंट, और ऊपर जाते जाएंगे सिग्नल और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मेडुला पे पहुंचेंगे। यहाँ से क्योंकि मेडुला के पीछे सेरिबेलम होता है, ये सेरिबेलम के अंदर जब इंटर होंगे, सेरिबेलम के पास एंट्री के 3 रास्ते हैं। एक का नाम सुपीरियर, एक का नाम मिडल, एक का नाम इंफीरियर, और उनका नाम दे दिया है पेडंकल्स। पगडंडियां होती हैं, जैसे एक आप फूल की डंडी होती है जिससे फूल लटका होता है, इसी तरह की डंडियां होती है जिनसे सेरिबेलम
अटैच है मेडुला के साथ, वो इंफीरियर जो सेरिब्रल पेडंकल है उसमें से ये डॉर्सल वाले फाइबर जाते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन सेरिबेलम को देते हैं। क्लियर? और वहां फिर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर से डेफिनेटली साइनेप्स करेंगे और थर्ड ऑर्डर उनका सेरिबेलम में होगा और सेरिबेलम के लोब होते हैं, कहाँ होती है टर्मिनेशन? एंटीरियर लोब ऑफ सेरिबेलम। क्लियर? अब लेजन अगर हो जाए, ये पाथवे कहीं कट हो जाए तो डेफिनेटली ये उसी साइड की इंफॉर्मेशन लेके आता है, तो उसी साइड की सेंसेशन लॉस हो जाएंगी। कौन सी सेंसेशन? जो ये बोन और जॉइंट से लेके आया उसमें उसकी टेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, गोल्जी टेंडन की इंफॉर्मेशन थी, जिसको हम प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। कंबाइनली इन तमाम सेंसेशन को एक अलग नाम भी देते हैं, काइनेस्थेटिक सेंसेशन। स्पेशली फिजियोथेरेपी वाले इस किस्म की टर्मिनोलॉजी ज्यादा सुनते हैं, काइनेस्थेटिक सेंसेशन। क्लियर दैट? So same side will be lost when this tract is lost. Which tract? Dorsal. Dorsal is also known as posterior. Clear? दूसरा नाम उसका posterior है। Then other दूसरा जो काउंटर पार्ट है, दूसरा हिस्सा है जो स्पाइनल कार्ड से सेरिबेलम इंफॉर्मेशन लेके जाता है, that is known as ventral spinocerebellar tract. Its receptors are that receive from proprioception, वही from the joint, muscle, tendon, same receptor उन्हीं से इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ये वही इंफॉर्मेशन तकरीबन लेके आता है, carry the impulses of subconscious proprioceptive impulses from muscle, tendon, joint, same information, but pathway is different. The first order neuron are in posterior neuroid ganglia. Majority of the fiber of second order neuron cross the midline. अब इसके majority fiber cross करेंगे दूसरी तरफ, अपोजिट साइड पे जाएंगे। ये आप देख लें इसकी पिक्चर क्या होता है। गोल्जी टनल ऑर्गन से इंफॉर्मेशन जा रही है, ये पहले ऑर्डर न्यूरॉन डॉर्सल रूट गैंग्लिया, इसने साइनेप्स किए यहाँ सेकेंड ऑर्डर के साथ। सेकेंड ऑर्डर उस तरफ ऊपर नहीं गया, उसने क्रॉस किया स्पाइनल कार्ड की दूसरी साइड, फिर ऊपर गया। वहां ट्रैक का क्या नाम है? एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। ऊपर गया, मेडुला को क्रॉस किया, पोन्स को भी थोड़ा क्रॉस करके, फिर ये पोन्स के लेवल पे क्या होता है कि सेरिबेलम में हमने कहा 3 रास्ते होते हैं इंफॉर्मेशन जाने की, सुपीरियर वाले रास्ते से सेरिबेलम के अंदर जाते। क्लियर? अगेन इसको देख लेते हैं कि फाइबर ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस द मिडलाइन, ascend in lateral wide column of opposite side. Some fiber ascend in lateral wide column of same side also. From here fibers reach the cerebellum through the superior cerebral peduncle. ये आपने इसमें याद करना है। वेंट्रल और डॉर्सल का फर्क मेजॉरिटी में यही है कि वेंट्रल वाला जो ट्रैक है, जिसको एंटीरियर ट्रैक भी कह रहे हैं, इसमें फाइबर क्रॉस करते हैं, टर्मिनेशन सेम है एंटीरियर लोब ऑफ सेरिबेलम। लेजन का इफेक्ट अपोजिट होगा कि सबकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन जो आप कह रहे हैं, जो लेके जा रहा है अपने साथ ऊपर सेरिबेलम के पास, दे विल बी लॉस्ट ऑन ऑपोजिट साइड। क्लियर दैट? सो वेरी क्लियर कट पिक्चर ऑफ दिस ट्रैक. So thank you so much. What we have discussed today, we have discussed an important track carrying the important information from the muscle and tendon about their movement, about their working, about their tension, carry from the musculoskeletal system. Then that information enter in the spinal cord. From spinal cord they reach the cerebellum, because cerebellum have to coordinate these movements. So this track carry information from spinal cord to cerebellum is known as spinocerebellar tract. Clear? Then we have discussed the spinocerebellar tract. When entering the spinal cord, there are 2 ways of that. One which travel in the dorsal portion of spinal cord is known as dorsal spinocerebellar tract. This tract is basically uncrossed tract, ascend information on the same side, then through inferior cerebral peduncle enter in the anterior lobe of cerebellum. The other tract is the posterior one. The other tract is not posterior, that is anterior one, which carry information, and that is also known as ventral spinocerebellar tract. This is called as, this is a cross tract, in which information at the spinal cord cross to the opposite side, then ascend in the spinal cord and reaches the cerebellum through the superior cerebellar peduncle. Clear? So that was our simple topic today about the unconscious, subconscious, proprioceptive information, how these are carried from muscle and joint to the cerebellum. So thank you so much for today's lecture.